بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن حدیث کی روشنی میں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سننا رہے ہیں، جسے سن کر آپ لوگ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے قوم کے بارے میں آسانی سے جان سکیں گے۔ اگر اس قصے کو سننے میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ویسے بھی ہم نے سننے میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام جونوح بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ شافات آیت نمبر 139 میں فرماتے ہیں، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ نینوا بستی میں دین کی دعوت۔ نینوا بستی کی آبادی لگ بھگ 1,20,000 تھی، اور یہاں کے سارے لوگ کفر پہ تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال در سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دی، مصائب و الام سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخر آپ نے اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکلے اور سمندر کی طرف چل دیے۔ قرآن سورہ انبیاء آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کے کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سیاہ کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا۔ اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کی عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لانا۔ بستی پر عذاب کی علامت دیکھ سب پریشان ہو گئے، اور ان کے سردار کہنے لگے، اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پابند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور آہوجاری شروع کر دی۔ رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ پھر اسی حالت جار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر، یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوجاری کرنے لگے۔
ताकि उन पर रहमत नाजिल हो जाए। ये अजाब 3 दिनों तक उनके सरों पर मंडराता रहा और ये लोग भी मुसलसल आहुजारी करते रहेंगे, अपनी आजिज़ी जाहिर करते रहे, माफिया मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहमो करम फरमा दिया और अजाब को उनसे फेर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या। आपके गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समंदर की तरफ चले आए थे। आप एक रिश्ते की तरफ आए, उसमें सवारियां और साजो सामान लदा हुआ था। अल्लाह ताला सूरा शाफात आयत 140 में फरमाते हैं, जब वो भागकर भरी कश्ती पर पहुँचे, कश्ती रवाना हुई, मौज उठी, समुद्र में तोग्यानी आई, यूं लगता था कि बस अभी गर्क हुए। कहने लगे बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समंदर में फेंक दो। चुनांचे उन्होंने अपना अपना साजो सामान समुद्र में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन जरूरत के मुताबिक हल्की ना हो सकी। अब वो कहने लगे किसी को समुद्र में गिराना जरूरी है ताकि कश्ती मजीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कुरा डालो, जिसके नाम का कुरा निकलता जाए उसे समुद्र में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ, यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनांचे कुरा डाला गया। सबसे पहले सैयदना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, इनके चेहरे पर तो सजदों के निशानात हैं, इन्हें रहने दो। फिर कुरा डालो, फिर कुरा डाला गया, फिर इन्हीं का नाम निकला। सब ने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा फिर कुरा डाला गया। इस बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। अल्लाह ताला सूरा शाफात आयत 141 में फरमाते हैं, फिर कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समुद्र में गिरा दिया, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। हुद बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हुद को इल्कान फरमाया, इन्हें खाना नहीं, ना इनके जिस्म को कोई गजन पहुँचे। लिहाजा यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज रिवायात में 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 रोज आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। कुरान अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उलेमा ने यहाँ 3 अंधेरों का जिक्र किया है, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। गोया उन पर ये सारे अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। कुरान अल्लाह ताला सूरा शाफात आयत 143 और 144 में फरमाते हैं, बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके पेट ही में रहते। मतलब ये कि अगर आप अल्लाह तबारक व ताला की तस्वीर बयान ना करते तो मछली के पेट ही में रहते। आपने दुआ नहीं मांगी बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्वीर बयान की। रिवायत में यूँ भी आता है कि जब मछली आपको समुंदर की अथाह गहराई में ले गई तो आप वहाँ आबी मखलूकात की तस्वीहात की आवाज़ें सुनने लगे। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें इल्का फरमाया कि आप भी तस्बीह करें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, बिल आखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस तस्वीर के अल्फाज को यूं अदा पर फरमाया। इमाम अहमद, इमाम त्रिमिज़ी, इमाम नसाई और दीगर आइमा रहमहुमुल्लाह ने ये हदीस नकल की है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी, वो यही दुआ है। जो भी मुसलमान ये दुआ अपनी किसी हाजत में मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। ये दुआएं मुस्तजाब है, मकबूल दुआओं में से हैं। इसी दुआ के बाद अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को उस परेशानी से निजात अता फरमाई। कुरान अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 88 में फरमाते हैं,
तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। उद्धरण चिन्ह। हदीस। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मछली के पेट में मांगी, क्या वो सिर्फ उन्हीं के लिए थी या उनके बाद अहले ईमान के लिए भी है? तो आपने फरमाया, ये दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास थी और सब अहले ईमान के लिए आम है। क्या तुमने अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुना? और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। जो भी इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह उसे रंजो गम से नजात देंगे। एक कौल के मुताबिक तकरीबन 40 रोज आपकी सबो रोज यही दुआ रही। इस मुद्दत के खत्म होने पर अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूलियत बख्शी। मछली साहिल पर पहुंची, उन्हें किनारे पर डाला और वापस चली गई। इस बात को अल्लाह ताला ने सूरतुल शाफात 145 में यूं बयान फरमाया है, बस उसे हमने चटियल मैदान में डाल दिया और वो उस वक्त बीमार थे। आप वहाँ इसी तरह लेटे रहे। फिर अल्लाह की कुदरत से आपके करीब एक बेलदार दरख्त उगा, जैसा कि सूरतुल शाफात आयत 146 में है, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। इस कद्दू के दरख्त के मुतालिक मुआरखिन का कहना है कि अल्लाह ताला ने इस दरख्त का इंतखाब इसलिए फरमाया था कि इस दरख्त के पत्ते चौड़े होते हैं, उनके साए में उन्हें ढांप दिया गया ताकि हवा से अजियत ना पहुँचे, इसलिए कि उनके जिस्म से जिल्द उतर गई थी। फिर इस दरख्त से अच्छी खुशबू भी आती थी। फिर कद्दू की खुशबू में एक खुसूसियत ये थी कि हसरातुल अर्श को दूर रखती हैं। अल्लाह ताला ने इन्हीं खुसूसियात की वजह से इस बेलदार दरख्त का इंतखाब फरमाया था, ताकि आप हर तरह की तकलीफ से महफूज रहें। ये अल्लाह की कुदरत, सुबहान अल्लाह। इसी तरह मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके पास एक पहाड़ी बकरी भेज दी। वो आपके करीब आती और आपके सिर के ऊपर अपनी टांगे फैलाए खड़ी हो जाती। इस तरह उसके थन आपके मुंह में चले आते और आप उनसे ख्वाहिश के मुताबिक दूध पीते। ये था आपका खाना और पीना। रफ्ता रफ्ता आपकी हालत बेहतर हो गई, तावाना और तंदुरुस्त हो गए। फिर आप उठने के काबिल हो गए, और ये सब अल्लाह ताला के मेहरबानी से हुआ। जब आपकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ताला ने आपको फिर आपकी कौम की तरफ भेजा, जैसा कि सूरतुल शाफात तो आयत 148 में है, और हमने उसे 1 लाख बल्कि और ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा। बस वो ईमान ले आए और हमने उन्हें एक जमाने तक ऐशो इशरत दी। वो सब के सब आप पर ईमान ले आए थे। अल्लाह ताला ने इस किस्से के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा फरमाया है कि दावत देते हुए उकताना नहीं। अल्लाह ताला सूरतुल कलम आयत 48 में फरमाते, और मछली वाले की तरह ना हो जाइए, इन लोगों को दावत हक देते रहिए। देखिए वो साल दर साल दावत देते रहे लेकिन उकताए नहीं, उनसे मायूस नहीं हुए। उनकी पूरी बस्ती में से एक भी उन पर ईमान नहीं लाया था, लेकिन जब उनसे मायूस हो गए तो उन्हें अल्लाह के आजाब से आगाह कर दिया और मुंह फेर कर चल दिए, तो वो सब के सब ईमान ले आए। कुरान। अल्लाह ताला सूरतुल कशिश आयत 56 में फरमाते हैं, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है हिदायत देता है। सबक। इस किस्से में बहुत बड़ा सबक है कि किसी भी हालत में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना हिदायत के मामले में अपनी जात पर भरोसा करना चाहिए। हिदायत तो बस सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से है। आपके जिम्मे तो पैगाम हक पहुंचा देना है। अल्लाह ताला के जिम्मे हिदायत से नवाजना है। अल्लाह ताला ने उन्हें पाक साफ बना दिया, उन्हें चुन लिया। अल्लाह खुद ही सूरतुल कलम आयत 50 में वजाहत फरमाते हैं, उसे उसके रब ने फिर नवाजा और उसे नेक लोगों में कर दिया। हदीस। इमाम मुस्लिम ने एक हदीस रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम में से कोई शख्स हरगिज ये ना कहे कि मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनुस बिन मत्तार से बेहतर हूँ, यानी यूं ना कहे कि मैं सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ। वो इस तरह के वो तो अपनी कौम की ईमान लाने से मायूस हो गए थे और मैं मायूस नहीं हूँ, इस तरह बिल्कुल ना कहे, क्योंकि बिल आखिर अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया और बरगुजीदा बना लिया और सालेहीन में दाखिल कर लिया। इस वाक़या में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत दी गई है उसका जिक्र सूरतुल कलम आयत 41 में आता है। बस तू अपने रब के हुक्म का सब्र से इंतजार कर और मछली वाले की तरह ना हो जा। मतलब ये कि यूनुस अलैहिस्सलाम के मानंद ना हो जाइए जो अपनी कौम के ईमान न लाने से मायूस हो गए थे। यकीनन दीन की दावत और हक के प्रचार में ये बहुत अजीम सबक है। ये दाई इल्लल्लाह को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ये था सैयदना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आए तो सदक़े जारिया की नियत से ज़्यादा लोग शेयर करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जाते जाते एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।